अब दीप प्रज्वलन के लिए रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्रिंसिपल सर से और अपने जो फैकल्टी हमारे जितने भी विभागाध्यक्ष महोदय हैं, डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर यशवंत राव और डॉक्टर चैनिका काला, जो मिसेस डॉक्टर प्रिंसिपल, डॉक्टर अरुण आर्या, डॉक्टर आनंद नारायण, टू प्लीज कम फॉर द दीप प्रज्वलन. Good morning, everyone. So, my dear esteemed students, it is my honor to welcome you to Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College, popularly known as GSPM Medical College. It is a very prestigious institution, and that has been shaping the future of medicine for years. Now for decades, I must say. I also belong to this college. My para was para 01, 94 batch. So I'm also a Ganesian like you, but I'm not a budding Ganesian. So here in GSBM, we are committed to provide you with state-of-art facilities and infrastructure, expert faculty guidance, mentorship, innovative curriculum and research opportunities, community engagement and self-learning experiences. So now you are embarking a new journey. In this transformative journey, I offer only few words of wisdom to you. Be the change you wish to see in healthcare. Let your passion for medicine drive you to excel, innovate, and serve humanity with compassion and dedication. So welcome to this prestigious college. And of course, I also welcome all the parents. And you should be proud of your children, because this is a prestigious college in which they have taken admission. And I strongly believe, as a a student of this college, not ex, still a student of this college. So I strongly believe that the parents' support will be with us whenever we'll try to improve we will be trying to improve the knowledge of your children. But in that, we really need your support, so that you should also keep on tracking your children, that they are available in the college, they are not bunking the college, they are coming in the classes regularly, taking their tests, their assessments regularly, and we'll also keep on informing you from our side also. So welcome to this college. We are proud to have you as our community. Thank you. थैंक यू डॉक्टर डॉली जी. हाँ, अब हम भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं. पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, पेरेंट्स का घर तो आपका है ही, लेकिन ये भी आपकी एक कर्म भूमि है और हम लोग भी आपका एक परिवार है, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं. और पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे, जैसे अभी तक आपने इनका लालन पोषण सुरक्षा करते हुए इनको आपने यहाँ तक भेजा है, तो भरोसा रखिए हम लोग भी इनकी पूरी सुरक्षा करेंगे. बच्चों, आपको कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षित रहेंगे आप. और अगर आपकी रैगिंग वगैरह हो रही है तो आप हमको तुरंत कम्युनिकेट कीजिए और डरिए मत, घबराइए नहीं और विचलित मत होइए. आप सुरक्षित है यहाँ पर. इसके अलावा सिर्फ रैगिंग ही नहीं, रैगिंग तो जस्ट एक अगर होती भी है तो एक छोटे से पार्ट के लिए होती है. देयर शुड बी नो रैगिंग, देयर इज नो रैगिंग. बट आगे भी अगर आपको कोई भी कष्ट होता है, कोई भी स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हर परिवेश के बच्चे हैं, अमीरों से बच्चों के हैं और मैं जानती हूँ कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कई बहुत गरीब परिवार से बच्चे हैं जो किसी मेहनत करके आए हैं. अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत है तो यू कैन कम टू मी एंड कम टू अस, एनीबडी ऑफ अस, जिसको भी आप अपनी बात कह सकते हो. आप आइए और आपका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे. कोई आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और इसके साथ ही मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना आशीर्वचन आपको दे. डॉक्टर सौरभ. Thank you, madam. As all of you know that our regular principal has gone for some meeting to Lucknow, and I am taking his place. So once again, I welcome you all to this prestigious institution where you will be budding. You are a budding medico, and you will turn out to be a great professional in your career. That is all
our wishes. So this ceremony, as you know, it symbolizes just pureness which is associated with your white coat. Demands that your behavior and your all the actions should be very pure. They should be in the benefit of your patients, and you have to dedicate your rest of the life for the well-being. You are going to become healers. So don't bother for money. Once you have become a good healer, the money will follow. So this is the time that you should try to focus on the right things. Don't indulge into any wrong activities, and everybody knows what is wrong, what is right. You will have to learn right things. You will have to unlearn many of the wrong things which you might have come across or know. So with these words, I welcome you again and best of luck to all of you. थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों को हॉस्टल अलॉट हो चुका है, आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और कॉलेज परिसर में आप ये कॉलेज परिसर आपका है और इसमें शांति बनाए रखना, इसको साफ़ सुथरा रखना सब आपका दायित्व है। अब आप हमारे मेंबर हैं और इसके साथ ही मैं अब बुलाना चाहूँगी अपने प्रॉक्टर महोदय डॉक्टर यशवंत राव, ही इज़ सीनियर प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, टू कम टू द डैश एंड एड्रेस यू। थैंक यू प्रोफेसर सुनीति मैम। स्टूडेंट्स, आज आपका वाइट कोट सेरेमनी हो रहा है। इसको आप ये समझो लग्जरी नहीं है बेटा, ये जैसा मैडम ने बताया कि लेगेसी है जो हम आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी ओर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए नए बैच आते जाएंगे। जहाँ पे आज आप बैठे हैं, आज से लगभग 26-27 साल पहले हम वहाँ बैठे होते थे। मेरा नाम यशवंत कुमार राव है और मैं पैरा N1 का यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। तो वाइट कोट पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर सौरभ सर जो कि हमारे एक्टिव प्रिंसिपल है आज के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर आपको ध्यान हो, कि हीलर बनो। किसी को पेन देने से फ़ायदा नहीं, जितना मतलब हीलर बनने में जितना आनंद आता है जब आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। कोई गरीब आदमी वो आपको थैंक यू नहीं बोलता है, केवल अपनी आँखों से आपकी तरफ देखता है, समझिए वो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होता है आपके लिए। आपको ऐसा बनना है। और हर साल हम बताते हैं कि छात्र 3 तरह के गुण वाले होते हैं। कुछ होते हैं जो तमोगुण वाले होते हैं, कुछ रजोगुण होते हैं, कुछ सतगुण वाले होते हैं। सतगुण वाले छात्र वो होते हैं बच्चों जिनको कितना भी, जो कहते हैं ना चंदन का पेड़ है, कितना भी सर्प उस पर काटता रहे उसमें विष का असर नहीं होता। वो छात्र होते हैं सतोगुण वाले, उनको कोई खराब नहीं कर सकता। कुछ छात्र होते हैं जो तमोगुण वाले होते हैं। तमोगुण वाले को कभी सही नहीं कर सकते आप। जो रजोगुण वाले होते हैं सबसे ज़्यादा वही अफेक्टेड होते हैं। अगर वो अच्छी दिशा में चलते हैं तो वो सतगुण में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ, उनकी जो टेंडेंसी होती है वो तमोगुण वालों की तरफ जाने की ज़्यादा होती है। तो आपके सीनियर बैच में, डियर पेरेंट्स, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, सीनियर बैच में कुछ छात्र हैं जो कि कुछ अनवांटेड इलीगल एक्टिविटी में भी कभी कभी बिजी रहे हैं। बिना बताए माँ बाप को कई बार लोग बाइक लेके 100-100, 200 किलोमीटर दूर चले गए हैं। पिछले साल, इसी साल एक छात्र एक झरने में डूब के ख़त्म हो गया। हम लोग कब तक हॉस्टल में पहरा देते रहेंगे? जितना होता है हम लोग जाते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम हैं। वो बिना बताए चले गए, एक छात्र चला गया हमारा। तो आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है। मतलब एक ऐसे ही एक छात्रा जो है छत से गिर गई रात को 2-3 बजे के आसपास। तो बेसिकली आपको बताना ये है कि जो आपका सीनियर गलत काम कर रहा है, कहीं बियर पी रहा है, कहीं सिगरेट पी रहा है, आपका दिमाग उधर ज़्यादा, अरे वाह ये बॉस बहुत बढ़िया है यार, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। डोंट बी मूव टूवर्ड्स देम। आपको यहाँ पे 4.5 साल अपनी ज़िंदगी बनानी है। और ये मत सोचो कि आप GSB मतलब यूपी के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपने एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा नाम कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये मत सोचिए कि आज आप डॉक्टर बन गए। बेटा MBBS बनने के बाद आपको बता दूं, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या कहा जाए। तो ये मत सोचिए कि आप डॉक्टर बन गए
अभी तो एक शुरुआत हुई है। मेडिकल एजुकेशन थोड़ी टफ होती है, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आगे आपको पीजीएम में निकालना है। अगर नीट पीजी में आप सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो आप डिग्री नहीं कर पाएंगे, फिर आप वही पीएससी सीएससी की नौकरी करते हुए ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा आपको। तो आप अगर अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं तो जैसे आज आप अपने माँ बाप के कहने के अनुसार अच्छे राह पे चलते हुए एक मुकाम हासिल किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे पेरेंट्स से स्पेशली कि आप लोग शाम को अपने बच्चे की लोकेशन लेते रहिए। आप जाने से पहले मेरा और अभी ये लोग फर्स्ट फ्लोर के साथ में रहते हैं, प्रोफेसर सुनीति पांडे, डॉक्टर प्रमोद है, और हॉस्टल के और भी हॉस्टल के वार्डन, प्रिंसिपल सर का मेरा नंबर ले लीजिए। आपको कभी भी लगता है कि मेरे बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, आप एक मैसेज छोड़िए, वी विल बी देयर टू हेल्प देम। लेकिन पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम इनका ध्यान रखेंगे, लेकिन हम हर बच्चे की हर समस्या तक नहीं पहुंच सकते। कभी कुछ भी हो आप आके बता सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में लखनऊ चले गए हैं। एक लड़का है केसरी, फाइनल प्रॉफ में गणेश केसरी बेटा, हमारे प्रिंसिपल साहब इस मत के हैं कि अगर कोई बच्चा आएगा तब तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कैसे हेल्प करेंगे। तो एक लड़का है, उसके पेट में ऐसी प्रॉब्लम है कि SGPGI में 6-7 महीने से पेन इन एब्डोमेन डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। तो उसको जांच के लिए SGPGI में 1.5 लाख रुपए जमा करने थे। तो वो लड़का डरते सहमते 1-2 लोगों के पास पहुंचा, फिर उन लोगों ने मेरे पास पहुंचाया, फिर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। तो उसके पास कुछ उसके बैचमेट्स भी आपस में ना, गणेशियन का मतलब ही यही होता है, गणेशियन डज नॉट मीन कि आप डॉक्टर गणेशियन है, एक दूसरे की हेल्प करना। वो लड़का पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब हमको बोले तुम क्यों पैसा दोगे, मैं दे रहा हूँ पैसा इसे। एंड प्रिंसिपल सर डोनेट गिव 50,000। हमारे पैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर योगेंद्र वर्मा, उन्होंने 50,000 दे दिया तुरंत। उस बच्चे का सारा इलाज वहाँ पे हो रहा है। आज भी उसका मैसेज आया है। ये होता है पर्सनल टच। मेरे मोबाइल पे है, मोबाइल पे मैसेज आया कि सर आज हॉस्टल आप अलॉट कर रहे हैं, मैं तो SGPGI में अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो उसने हमें बताया तो हमने तुरंत उसकी मदद करी। मैंने उसको मैसेज किया आई विल अलॉट योर रूम इन एडवांस। वो हाथ जोड़ के बोला थैंक यू सर। बच्चे, अगर आप अपनी समस्या लेके हमारे पास आओगे तो डेफिनेटली हम कोई न कोई सलूशन आपके लिए निकालेंगे। और ये तो हम अभी केसरी बच्चा एक है, बहुत सारे बच्चे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, तरह तरह के ट्यूमर, कई सारी बीमारियों से ग्रसित हुए, बट वी आर देयर टू हेल्प देम। लेकिन ये है कि हमें वो चीज़ पता चलनी चाहिए। आप कहीं से भी, आपके पेरेंट्स भी लेके परेशान होते रहते हैं, आपके ही बैचमेट मतलब आपके ही सीनियर या हमारे स्टूडेंट संजय गांधी, दिल्ली, SGPGI, एम्स, आउट ऑफ कंट्री सब बैठे हुए हैं लोग। अगर अब आपके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप आके बताएंगे सर मेरे पापा को ये प्रॉब्लम। कई सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप RML में इलाज कराए हैं, यहीं पे थे डॉक्टर सचिन अवस्थी। कई बच्चों के माँ बाप के ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, केवल एक फ़ोन पे हो जाता है। तो रिमेन कनेक्टेड, गणेशियन का मतलब होता है कनेक्टेड रहना। दूसरी बात हम आपको बताएं, हमारे टाइम में, आप अभी अपने बैचमेट्स के नाम नहीं याद करते हैं, हमारे टाइम में हम लोग 5 बैच ऊपर और 3-4 बैच नीचे के एक एक के नाम याद होते थे कि उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। इट वॉज ए पार्ट ऑफ रैंक यू कैन से। बट इसका बड़ा फ़ायदा होता था। फ़ायदा क्या होता था, हर कोई उस समय हमारे टाइम में 180 बैच होता था, क्यों सौरभ सर, 192, और हर साल सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे। तो जो बच जाते थे वो सब दिल्ली जाते थे। दिल्ली में कोई भी पड़ा हुआ, सौरभ सर है वहाँ पे SRCP कर रहे हैं, बॉस आ गए, क्या हुआ बॉस, तैयारी करना है, ठीक है बिस्तर डाल ले। एक कमरा मिला हुआ है, तखत के नीचे एक बिस्तर पड़ा हुआ है, साइड में बिस्तर पड़ा हुआ है, इधर एक कमरे में 6-6 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पे हीटर लगा लिया, रोज़ तहरी बन रही, क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे, और तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वी वेयर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ट्राई टू कनेक्ट विथ योर गुड सीनियर, नॉट बैड सीनियर जिनके अंदर तमोगुण है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको हम बधाई देते हैं। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सेरेमनी लेट होगी। बस ये समझिए कि ये वाइट कोट सेरेमनी आपके लिए सिर्फ लग्जरी नहीं है, आप कंधे पे डाल के बाहर घूमते, ये लग्जरी नहीं है बेटा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका एहसास हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों के टाइम में नहीं होता था ये सब।
हमारी तो वाइट कोट सेरेमनी होती थी गोल चौराहे पे, 4-6 पढ़ते थे, दैट वाज वाइट कोट सेरेमनी, बट वी एंजॉयड दैट मोमेंट। तो जो भी होता है उसको एंजॉय करिए, आगे बढ़िए। कहीं पे आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वी आर हियर टू हेल्प यू, एनी टाइम एनी डे यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन डॉक्टर लुबना भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आकर आपको कुछ आशीर्वाद दें। She is professor and head transfusion medicine department. Thank you so much. Thank you, Dr. Saurabh, who is acting principal, Dr. Yashwant, Dr. Dolly, Dr. Chanika, and all the senior faculty members, Dr. Pramod, Dr. Burman, Dr. Arya, and my dear students. Abhi Dr. Yashwant sir aaye the, and he is your proctor. That means he is in charge of all the hostels, और मैं सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज हूँ। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि एक जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ना कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ, बल्कि अदर लोगों के साथ भी। सिंस कि जैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई तो आई वॉज अ न्यू पर्सन, लेकिन जो प्यार मुझे यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट्स से मिला, दैट वॉज अ रियली अ मूविंग मोमेंट फॉर मी, कि मुझे आज ये लगता है कि शायद मैं इसी कॉलेज की प्रोडक्ट हूँ। आई फील कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो जो गणेशन है ये एक फैमिली है, एक दूसरे से हम लोगों का जो कनेक्शन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी, कुछ टाइम पहले मैंने शायद किसी डेंटल प्रोडक्ट का एक ऐड देखा था, उसमें देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत खूबसूरत मॉडल थी, पर उसका एक सेंट्रल का जो टीथ था वो नहीं था। तो उस फोटो पे देख के सबसे पहले नज़र उसकी उस मिसिंग टूथ पे जाती थी। तो इस कॉलेज की मोर देन 75 ईयर्स की लेगेसी है, 75 साल की खूबसूरती है, लेकिन अगर एक टीथ मिस हो जाता है, टूथ मिस हो जाता है, अगर कोई बच्चा एक छोटी सी भी गलती करता है तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छा जाती है। तो ये बात रखिए कि हमारी जो इतनी बड़ी लेगेसी है वो उसको मेंटेन रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इन सब लोगों ने, एक टावरिंग पर्सनालिटीज़ ने उसको ज़िंदा रखा है। नाउ इट हैज़ बिन पास टू यू टू मेंटेन इट, कि कहीं भी वो एक कोई भी मिसिंग लिंक नहीं होना चाहिए कि कल कोई गणेशियंस के ऊपर कोई उंगली उठा पाए। और इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेश में भी हैं, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और एज अ वार्डन मैं हमेशा आपसे ये कहूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कम टू अस। मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर यशवंत के पास आप जा सकते हैं। यू कैन कम टू एनी ऑफ अस, विल बी ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। लेकिन ये बात रखिए कि पहले आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन को जोड़ के रखिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे आते हैं कि हमको सिंगल सीटर लेना है। भाई क्यों सिंगल सीटर रहना है? आपको क्यों नहीं एक दूसरे के साथ प्यार से आप रह सकते? ये जो एक कॉलेज है एक दुनिया की छोटी सी फॉर्म है। अगर आप इस कॉलेज में प्यार से नहीं रह पाएंगे तो इस कॉलेज से बाहर निकल के आप अपने जॉब में जाएंगे, अपने अलग अलग घरों में जाएंगे, परिवारों में जाएंगे, वहाँ पे भी आप समन्वय नहीं बैठा पाएंगे। तो दिस इज़ जस्ट योर एक्सपेरिमेंटल लैब। एक दूसरे के साथ में रहिए, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू अस। हम फ़ोन पे बात हो सकता है ना कर पाए, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज एंड योर प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड विद दिस ऑल द बेस्ट, एन्जॉय दिस मोमेंट। ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्जॉय कीजिए लेकिन साथ साथ पढ़ाई कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक। बॉयज़ हॉस्टल के भी वार्डन और प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष एनाटॉमी डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं, उनको हम अनुरोध करेंगे वो आए। थैंक यू मैडम। आज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, मैडम जैनिका, प्रॉक्टर सर, सभागार में उपस्थित सभी छात्र, पैरा S2 के
मैं इस कॉलेज में मैं यहाँ का भी हूँ और KGMC का भी हूँ, क्योंकि मेरा एडमिशन इसी कॉलेज में पैरा Q1 में हुआ था, लेकिन बदकिस्मती थी कि मैं KGMC में चला गया। लेकिन फिर जब मैं लेक्चरर बन के आया तो इसी कॉलेज में 2006 में मैं आया था और मैं आज तक इसी कॉलेज में हूँ। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं KGMC में रहा। मुझे आज भी सभी लोग जानते हैं कि मैं इसी कॉलेज का हूँ और यशवंत सर सबसे सीनियर हैं हम लोगों के। वो आज भी उसी प्यार से हम लोगों से बात करते हैं, उसी अधिकार से कभी भी फ़ोन करके बताते हैं। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आपस में अपने सीनियर का अपने जूनियर का ध्यान रखेंगे, अभी तो जूनियर नहीं है, आप ही लोग सबसे जूनियर हैं, लेकिन अगर आप अपने सीनियर के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक ना एक दिन आप भी कभी सीनियर बनेंगे तो आपको भी लोग रिस्पेक्ट देंगे। अगर जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कॉलेज में ये जो भी रैगिंग तो नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन होते हैं, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, गरीब हो अमीर हो, आप सबको सीनियर को रिस्पेक्ट करना है, अपने साथियों के रिस्पेक्ट करना है, और तभी हमारा ये गणेशियन परिवार एक बेहतर परिवार रहेगा। जो लेगेसी हमारे वरिष्ठों ने हमें दी है, हम उसको कायम रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। स्टूडेंट सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ हैं। कहाँ थे? अभी आए थे, उनको शायद किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा है। तब तो हमारे कैंपस इंचार्ज डॉक्टर बर्मन हमारे साथ हैं, इस विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन। आप लोगों का इनसे परिचय ज़रूर हो चुका होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग PSC CSC की विजिट कर चुके हैं। डॉक्टर बर्मन प्लीज़ अपने आशीर्वचन देना चाहते। थैंक यू मैडम। आज के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्रों, मैं सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ आप हैं उसकी गरिमा बनाए रखेंगे जब तक आप यहाँ पे हैं। आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको खुद अच्छा ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। कैंपस में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है और मैं 24 आवर एक्टिव रहता हूँ। कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत है आप मेरा नंबर ले लीजिए, कॉल करिए, विदिन 10 मिनट आपके पास अवेलेबल हो जाऊँगा मैं। अगर समस्या तुरंत सॉल्व करने तुरंत जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू सॉल्व की जाएगी। और आप कैंपस में सुरक्षित हैं और नो रैगिंग कैंपस है। अगर कोई कहीं इंट्रोडक्शन कुछ है तो आप दीजिए। जैसे हमारे प्रॉक्टर महोदय ने कहा कि सीनियर क्या होते हैं, सीनियर ऐसे भी हैं जो हमारी ट्रेन छुड़वा दी थी सिर्फ चाय पिलाने के लिए। दिल्ली में रेलवे स्टेशन दौड़ते हुए जाता था ट्रेन पकड़ने। हमारे बैच के 3 छात्र थे। एक हमारे यहाँ सर्जरी के बॉस थे, उन्होंने देखा अरे कहाँ जा रहे हो, तो बस ट्रेन पकड़नी है, क्या आओ, ले गए। क्या एक ही ट्रेन थोड़ी है, चलो पहले तुम थके लग रहे हो, कुछ खा पी लो, ले के वहाँ खिलाए पिलाए कि आप देखो कोई ट्रेन हो तो पकड़ लो। तो सीनियर का रिस्पेक्ट करिए और कोई भी समस्या होती है खुद नहीं आ सकते हैं, किसी के थ्रू भिजवाइए। जैसे बॉस ने बताया अभी डॉक्टर यशवंत राव ने, मैं भी यहीं का हूँ, बॉस का जस्ट जूनियर हूँ। और मतलब जिस गणेश की बात कर रहे हैं सबसे पहले मेरे पास ही आया था। ऐसे हर बैच में 1-2 छात्र होते हैं जो कि बहुत नीडी होते हैं। ये पैरा P2 में एक छात्र है जिसको कि मेस मतलब बहुत ही पुअर था, तो मेस की समस्या, आज भी मेस में फ्री खाना खाता है। हर साल 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं वो आते हैं। क्योंकि अभी सर के साथ में मैं ज़्यादातर बैठा रहता हूँ तो बच्चे मेरे पास ही किसी प्रॉब्लम के लेके आते हैं, तो सर से मैं बात करता हूँ। सर मतलब बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं कि किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कह रखा है कि तुम अपने से हेल्प कर लो, बाद में मैं देख लूँगा जो भी अच्छा लगे।
क्योंकि मुझे पता है और सर पे विश्वास है कि जो भी मैं बताऊंगा बच्चों की हेल्प के लिए वो अपने जो सीमा है उसके पार भी जाके हेल्प करते हैं। तो जो गणेश की है वो SCPGI में पहले खुद फ़ोन करके उसके अपॉइंटमेंट लिया, ट्रीटमेंट करवाया, नहीं हुआ, फिर आया तो फिर पैसे की प्रॉब्लम बताई, फिर वो मतलब सॉल्व हुई। तो आप लोग भी अगर कोई कभी दिक्कत होती है कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप इस कॉलेज के छात्र हैं और जैसे व्हाइट कोट सेरेमनी है, एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के निभाइए और यहाँ पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू। तो आप लोग MBBS करने आए हैं। MBBS पाठ्यक्रम के बारे में NMC की कुछ गाइडलाइंस हैं। इस साल आपके में फिर से कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं अनुरोध करूंगी अपने स्टूडेंट सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु शर्मा से कि वो आपको MBBS कुरिकुलम के बारे में ज्ञान दें। Good morning, everyone. So, as a student section in charge, I will be briefing on the your MBBS curriculum based on the latest guidelines of CBME 2014. So, these are published by NMC and they are available on the NMC website also. So, total duration of your MBBS course includes 4.5 years of academic years, and which is followed by 1 year of internship. So, total 5.5 years is the duration of your course. Now, this 4.5 year academic years are that divided into 4 professionals. Okay, now they are called as 4 phases as per new NMC criteria or guidelines. So these 4 phases are phase 1, phase 2, phase 3. Again, phase 3 is subdivided into phase 3 part 1, phase 3 part 2. So these are the 4 phases. And if you see the duration of all the phases, phase from all the first 3 phases is 12 months. That is phase 1, phase 2 and phase 3 part 1 is of 12, will be of your 12 months, and phase 3 part 2 will be of 18 months. And at the end of each phase, there will be university examination. So coming to each phase, the subjects which are included in every phase. So phase 1 is also known as preclinical phase, and the subjects included in this phase are anatomy, physiology and biochemistry, along with your foundation, 15 days of foundation course. Then in phase 2 or paraclinical phase, there are 3 subjects: pathology, microbiology and pharmacology. Then phase 3, it is a clinical phase which is divided into, as I have told you, part 1 and part 2. Part 1 will be of 12 months, part 2 will be of 18 months, that is 1.5 years. So part 1, phase 3, part 1, the subjects included in the phase 3 part 1 will be community medicine, forensic medicine and toxicology, ophthalmology and otorhinolaryngology or ENT. And phase 3 part 2, the subjects which will come during the university examination will be general medicine, general surgery, obs and gynae, pediatrics and allied subjects. Allied means subjects which are included along with these main subjects, that is radio diagnosis, psychiatry, orthopedics. So all these subjects will be included. Now, along with these phases, there will be an elective module of 1 month at the end of phase 3 part 1, which is actually a part of which will be in the starting of the phase 3 part 2. So there shall be 2 blocks of elective module of 15 days each in phase 3 part 2. First 15 days block will start after annual examination of phase 3 part MBBS part 1, and second block after the end of the first elective. Okay, so this is your 4.5 years of UG curriculum, MBBS curriculum. Now, after this, another important point which is mentioned in the CBME guidelines is about the eligibility of the students to appear in the professional examination. Now, this is very important, and first thing is the attendance of all the students to appear to be eligible for the final professionals. So coming to the attendance, so in all the subjects, to be eligible for that subject to appear in the examination, the attendance should be minimum of 75% in the theory and 80% in the practical or clinical posting. Okay, 75% theory and 80% in practicals.
So if the subject is covered in different phases, then in each phase you have to obtain at least 75% theory and 80% of the practical attendance. Otherwise, you will not be eligible to appear in the final examination or subject examination. And finally, coming to the marks distribution of all the subjects. So all the subjects which I have mentioned earlier, all the subjects will have one theory and practical examination. Theory paper usually in all the subjects are divided into paper 1 and paper 2. There will be 2 theory papers and 1 practical. All will be of 100 marks. So 200 for theory and 100 for practical, except 4 subjects, that is forensic medicine, otorhinolaryngology, ophthalmology and pediatrics, in which there will be only 1 theory paper of 100 marks and 1 practical, that is the total of 200 marks. So apart from this, all the subjects, there will be 2 theory paper and 1 practical paper. And the criteria for passing in all the subjects, so as per new guidelines, you have to obtain at least 50% of cumulative marks in theory and practical to clear for that examination. But separately, up to 40% is allowed to pass in the examination only if the total cumulative is 50%. That is, if you get 40% in theory, then you have to obtain 60% in practical, so that the total cumulative marks is 50%. Otherwise, you will not be able to qualify or pass that exam. Or in practical, if you get 40%, then you have to obtain 60%. So cumulative marks should be 50%, minimum of 50% to clear that exam or clear that subject. Okay. So this is it. Thank you very much. Congratulations and best of luck for your future. थैंक यू. तो आपने देखा, अच्छा सबसे लंबा सब्जेक्ट कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट इन द मेडिकल कुरिकुलम? कम्युनिटी मेडिसिन, लार्जेस्ट. फर्स्ट प्रॉफ से पढ़ना शुरू करेंगे. मिनी प्रॉफ, मतलब हम लोग उसे मिनी प्रॉफ करते हैं, 3rd प्रॉफ पार्ट 1. फर्स्ट प्रॉफ में पढ़िए, सेकंड प्रॉफ में पढ़िए, मिनी प्रॉफ में पढ़िए. कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट क्या है कि आपको भारत की जो कम्युनिटी है, समाज है, किसको आपको सेवा करनी है, आपकी जड़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं, उसका जानकारी, उसको आपको संभालना है. तो वो कम्युनिटी मेडिसिन है. 3 प्रॉफ का लार्जेस्ट सब्जेक्ट है. इसके साथ ही हमारे साथ विभागाध्यक्ष फर्स्ट प्रॉफ के बहुत महत्वपूर्ण बायोकेमिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद नारायण हैं. उनसे मैं अनुरोध करूंगी प्लीज़ 2 शब्द आकर बोलें. सुप्रभात गणेशियंस. यहाँ पे आज के वर्तमान के कार्यवाहक प्रधानाचार्य महोदय और समस्त संकाय सदस्य, आप सभी लोगों का इस सभागार में स्वागत है. आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपको गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जैसा महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज, यह प्रदेश का ही नहीं देश का ही सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेजों में से एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने का मौका प्राप्त हुआ है. इस मौके को अगले 5 साल तक कैसे उपयोग करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है. जैसा प्रॉक्टर महोदय ने आपसे बताया कि जो आप तमोगुण वाले अपने सीनियर्स हैं, आपके बैचमेट्स भी हो सकते हैं या आपकी फैकल्टी भी हो सकती है. इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस चीज़ को आपको फॉलो करना है. यह गाइडेंस आपके संस्कारों से, आपको स्वयं के निर्णय से लेना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन से गुण आपको हमारे अंदर से लेने हैं और किनको छोड़ना है. यह निर्णय आपके अंदर में होना चाहिए. इसी से आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे. आज का जो भी आयोजन है, यह आपको एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर दिलाएगा और पूरे जीवन आप एक ऐसी पद्धति में जा रहे हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहां आपका हर पेशेंट आपका एग्जामिनर होगा और हर पेशेंट आपके लिए एक नया चैलेंज लेके आएगा. मेरा एक पूरा विश्वास है कि आप अपने पूरे जीवन में अपने हर पेशेंट और अपने कार्यस्थल के साथ पूरी तरह से तन्मयता के साथ आप उसके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छी तरीके से आपकी जो क्षमता है उसका को आप प्रदर्शन करेंगे. और अपने 5 साल ही नहीं, पीजी में 3 साल, सुपर स्पेशलिटी में 3 साल, मैं ये विश्वास रखूँगा कि मेरे ये जो 250 छात्र हैं ये सभी सुपर स्पेशलिटी करें. मेरा ये विश्वास है और आप इसको ज़रूर पूरा करें. धन्यवाद. थैंक यू सर.
तो सर का विश्वास पूरा करने के लिए आपको MBBS के बाद PG निकालनी है। PG में आपको शायद आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट अब आपके साथ नेक्स्ट आपके सीनियर बैच से ही चालू हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपका होगा फाइनल ईयर का, जैसे ही प्रॉफ होगा तो फाइनल ईयर का प्रॉफ ना होके आपका नेक्स्ट होगा। जैसे आप लोग 10th और 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम देते रहे हैं, तो उसी तरह से अब भारत सरकार कंडक्ट करेगी आपका फाइनल प्रोफेशनल नेक्स्ट फेज़ 1। और उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी और इंटर्नशिप के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट 2 कंडक्ट होगा। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट 1 विल बी द क्वालिफिकेशन पार्ट, कि अगर आप नेक्स्ट पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं तो आपकी इंटर्नशिप नहीं शुरू होगी। फिर आप मतलब इंटर्नशिप के बारे में तो वो साइलेंट है अभी, लेकिन जब तक आप नेक्स्ट पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और PG के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 1 इज़ द एलिजिबिलिटी एग्जाम एंड द इंटर से मेरिट, आपस की जो आपकी जो पारस्परिक जो मेरिट होगी भारतवर्ष में, वो आपका नेक्स्ट 2 से निकलेगा, जो कि इंटर्नशिप के बाद कंडक्ट होगा। तो आप फाइनल प्रॉफ में थ्योरी एग्जाम नेक्स्ट पार्ट 1 तो भारत सरकार कंडक्ट करवाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जो भी चिकित्सालय, जो भी मेडिकल कॉलेज, जो भी स्टूडेंट का होगा वो संबंधित मेडिकल कॉलेज कंडक्ट कराएगा। तो आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट पार्ट 1 में आपके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 दोनों में ही सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप आपके लिए MBBS की इंटर्नशिप शुरू करने के लिए भी आपको भारत सरकार के स्तर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें, मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है और हम लोगों का नाम रोशन करना है। इसके साथ ही अब हम वाइट कोट सेरेमनी आरंभ करते हैं। मैं अपने यहाँ पर जितने भी गुरुजन यहाँ पर हैं उनसे अनुरोध करूँगी कि कृपया डायस पर आ जाएं। आपको प्रक्रिया बता दें, हम लोग सारे गुरुजन यहाँ पर खड़े होंगे, लगभग सेमी सर्कुलर और वी के मोड में खड़े होंगे और हम लोग 10-10 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। पहले एक स्टूडेंट को बुला के मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट कर देती हूँ, सो दैट कि आप लोग कोई कन्फ्यूजन उस वक्त ना रहे। आदित्य मेहता, रोल नंबर 1, प्लीज़ कम, यू कम। आप लोग देख लीजिए आप आएंगे तो कैसे आएंगे, और उसके बाद हम लोग 10-10 स्टूडेंट को बुलाएंगे। इसी तरह से आप लोग आते जाएंगे। आकांक्षा वर्मा, आयुष पटेल, अब्दुल्ला फौजान, अभिनव सिंह, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक कुमार, अभिषेक मौर्य, अभिषेक सिंह, अभिषेक यादव, अबू हुज़ैफा, आदर्श मिश्रा, आदित्य कुमार, अगस्त्य कुमार सिंह, ऐश्वर्य पांडे, आकाश, अमन राज, अमन यादव, आमिर कमाल, अमित कुमार, अम्मार अनवर, अमृता चौहान, आनंद शुक्ला, आनंद सिंह, अनंत सिंह, माफ कर भेजते रहिए। अनिका गुप्ता, अनिकेत जायसवाल, अंश दुबे, अंश प्रसाद, अंशिका राय, अंशिका सिंह, अंशु गौतम, अंशुमन सुजल बेरी, अनुज, अनुपम सिंह, जी अनुराग सिंह, अनुराग विमल, अनुष्का चौहान, अनुष्का जायसवाल,
अनुष्का सिंह, अनवी शुक्ला, आराध्य चौधरी, अरशान अहमद, आर्यन गौतम, आर्यन राय, आर्यांश त्रिपाठी, आशीष जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, आशुतोष सिंह, आस्था सेंगर। आप जल्दी उधर जाइए, आगे जाइए, उधर आगे जाइए बेटा, आगे चलिए, सबसे लास्ट में चलिए, लास्ट में। हट जाए, ठीक है, आ रही हो, हेलो, आ रही। आस्था सेंगर, आस्था सिंह, आथर्व चौहान, अताशी सिंह, अत्यंत पाठक, अवी त्रिपाठी, आविरल दीप, आयशा बानो, आयुष कुमार वर्मा, आयुष राणा, आयुष साहू। 150 पे रुक जाना, थोड़े लोगों को इनको करके फिर बुलाएंगे। जी, आयुष सिंह, बादल कुमार, भारती त्यागी, बिम्बसार, दीप प्रभात, देव भारद्वाज, देव विक्रम, देवानंद तिवारी, देवेंद्र सिंह। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी सर के पास जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। धैनी वाशणे, धर्मदास, डिम्पल कुमारी, दिनेश यादव, दिवजोत कौर, देव प्रकाश अमन, दुर्गेश राय, गरिमा जोशी, गुड्डी पांडे, गुनगुन सिंह। हंसिका सिंह, हर्ष पटेल, हर्ष सिंह, हर्ष यादव, हर्षित वर्मा, हर्षिता जायसवाल, हेमंत कुमार बघेल, हिमांशु पटेल। बेटा जल्दी आइए, मैम बुला रही। I would like to invite Jay sir and Himanshu sir on the stage. अच्छा। And also Jiten sir. स्टेट लेवल का कहाँ पर पहुँचे? मैम ये 191। 150 पे बुलाएंगे, 150। ईरा राय गुप्ता, रुक जा, तो फिर 100 पे रुक। ईरा राय गुप्ता, इरफान अली, जतिन वर्मा, जीशान चौहान, कैफ, कंगना शर्मा, कार्तिकेय गुप्ता, काव्या कौशिक, कीसू सिंह एंड कोमल चौधरी। डॉक्टर निधि और डॉक्टर को बुला लो, आरती को। डॉक्टर निधि एंड डॉक्टर आरती, प्लीज कम टू द डायस। अरे बॉस कहाँ है? रितेश बॉस को बुला के तो जल्दी करते हैं। जी। All the faculty here may please come on the dais for the this donning of the apron. कृष्णकांत चौहान, कीर्तिवर्धन गौर, क्षितिज यादव, क्षितिज सिंह, कुंवर दिव्यांश सिंह, कुश सिंह, कुशाग्र दुबे, कुशाग्र गुप्ता, लवराज, लक्ष्मण सिंह। कांग्रेचुलेशन। क्या नाम है? मैडम के पास जाओ। जी मैम। लवली बड़ाना, मादिया रहमान सिंह, महक यादव, महेश सोनेट, मानस शाक्य, मनीषा सिंह, मंजीत कुमार मौर्य, मयंक कुमार, मिसबा शाहिद अंसारी, मित्र सेन कुमार। मोहम्मद अमन, मोहक सिंह, मोहम्मद अलबाब, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आकिफ, मोहम्मद अमान बेग, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद जुनैद अंसारी, मोहित कुमार। बेटा इधर से आते हो। बेटा जाओ।
सारे टीचर्स के पास एक एक स्टूडेंट आ जाए। थोड़ा तुम आगे आ जाओ, पीछे बहुत हो तुम लोग। चल चल चल, नहीं अब सबके आगे नहीं, बुला लो सबके पास आ जाए एक एक स्टूडेंट। मोहित रावत, मोहित यादव, मोनू गौतम, मृदुल यादव, नबीला सुहेल, नदीम अनवर, नवीन प्रजापति, नीलम कुमारी, नेहान मनीष तनेजा, निधि प्रताप। बेटा जल्दी है जो। निकिता शर्मा, निकुंज खरवार, नीतीश कुमार मिश्रा, नितिन अग्रहरी, नुमान अहमद, पलक पटेल, पंकज कुमार, प्रभात गुप्ता, प्रभात कुमार, प्रांजल गौतम। अरे वो उसके लिए ताकि स्विच होना 200 के बाद देना। मेरा भी बाकी आज बेटा 1100। अभी दो बच्चे रह गए। बेटा बैठ जाओ, एक मिनट। तुम भी बैठो। प्रांजल गुप्ता, प्रेम कुमार पांडे, प्रीतम राज, प्रियदर्श सिंह, प्रियांशु गौतम, रघुवंश मणि, रागिनी, राज सोफिया, रजनीकांत, राजेश कुमार शाह, राजू चौधरी, राकेश कुमार, राखी आर्या, राशि नायक, रत्नाकर मिश्रा, रितिका पांटे, रेजुल उंगली सैफे, रितिका राजपूत, ऋत्विक आयुष। जल्दी बेटा जल्दी चलो जल्दी। ऋत्विक आयुष, रिया सचान, रोहित घोष, रोहित रस्तोगी, रुचि यादव, सचिन गौतम, साक्षी सिंह, समायरा, समीरा, संगम गंगवार, संजना सिंह। संजय नेगी, सारा रेहाब, सारांश सिंह बघेल, सत्यजीत सिंह पदम, सत्येंद्र कुमार मौर्य, सौम्य त्यागी, सौम्य राव, सौरभ दुबे, शहनुमा बानो, संभवी दयाल, शमशाद अहमद, शांतन बनर्जी, शिखा गुप्ता, शिव प्रताप यादव, शिवकांत तिवारी, शिवम गुप्ता, शिवम कुमार वर्मा, शिवम पांडे, शिवम शर्मा। शिवांग मौर्य, शिवांगी राज, शिवांश दुबे, शोएब रजा, शोभित सिंह लोधियाल, श्रद्धा कबड़वाल, श्रेया महेश्वरी, श्रेया मिश्रा, सृष्टि केडिया। शुभम कशौधान, शुभम पटेल, सिद्धि मिश्रा, स्मृति, स्नेहा वाषणे, सौम्या तिवारी, सृजन पांडे, सृष्टि, सुधीर सिंह राणा, सुहानी वाषणे, सुजल श्रीवास्तव।
बेटा अंदर जाओ, अंदर अंदर जाओ। अंदर जाती है। सुकन्या यादव, सुमेरा आलम, सुनिधि सिंह, सूरज, सुरेंद्र कुमार, स्वास्तिक पांडे, स्वाति राव, ताबिश अबुशाद, तीशा गुप्ता, तुलिका प्रकाश। अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ। आप भेजते रहिए, अंदर बहुत लोग हैं, अंदर बहुत। अंदर जाओ। उदित शर्मा, उत्कर्ष गुप्ता, उत्कर्ष पटेल, उत्कर्ष राय, वैभव राज जायसवाल, वंश सिंगल, वंशिका सिंह, वर्मा अनुराग राम भवन। विभोर पचौरी, विजय कुमार, विनय कुमार, विनीत, विप्लव चंद्र, विवेक कुमार, वीरेंद्र सुरेखा, वकास अहमद, यज्ञेश कुमार मिश्रा एंड यश कुमार मीना। अंदर जाइए, अंदर जाइए बेटा, अंदर जाइए। बेटा इधर आते जाओ। So with this we have done our white coat ceremony और अब मैं अनुरोध करूंगी अपनी फैकल्टी से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें ऑडिटोरियम में जाकर। प्रिंसिपल सर महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डायस पे रहें। अभी अब हम लोग चरक शपथ करेंगे। सब लोग स्टेबल हो जाएं, फिर हम लोग चरक शपथ करेंगे। सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे और प्रतिज्ञा के फॉर्म में अपना हाथ आगे कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग एक अपने जो है डिफरेंट फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एक कमिटमेंट है, एक शपथ आपको लेनी है, तो उसके लिए हम लोग महर्षि चरक शपथ लेंगे। अपना हाथ आगे करके शपथ लेंगे मेरे साथ। हे द्विज, पूर्वाभिमुख होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों की साक्षी में प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने अध्ययन काल में संयमी, सात्विक एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत आचरण करूंगा। मेरा व्यवहार सतर्कतापूर्ण, सेवापरायण तथा उद्दंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूँगा। मैं अपना आचरण संतोषी, आज्ञापालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांतियुक्त रखूँगा। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या,
का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूँगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूँगा। निजी स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूँगा तथा पर स्त्री एवं पराये धन की कामना नहीं करूँगा। अनैतिकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूँगा तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा। किसी स्त्री की चिकित्सा उसके पति अथवा आत्मीय की उपस्थिति में ही करूँगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित होंगी। मैं रोगी या उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूँगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूँगा, क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीय जनों को आघात कारक हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूँगा, क्योंकि इससे रोगी के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। यह चरक शपथ महर्षि चरक ने 200 से 300 BC में ईसा पूर्व में रचित की थी, जिसको हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2019 से लागू किया है। उससे पहले आपने हिपोक्रेटिक ओथ का नाम सुना होगा, तो डिग्री के समय वो ओथ दी जाती थी, परंतु अब हम लोग चरक शपथ को ही लेते हैं।